Hello everyone. Good morning. I am I am Epla Shredluangi, also known as Priscilla of class 9 will be taking your interview today. So first of all, congratulations everyone. So before starting our interview, I would like to ask you one thing. How are you guys? Thank you so much. That's great. So let's dig into our interview, shall we? It is a very proud moment for all of us, including your parents, families, and friends. So, how are you feeling right now after receiving so many love and appreciation from everyone? Currently, I'm feeling very nice and I'm also very much happy and filled with joy. I'm also proud of myself and also I'm very much thankful to my respected teachers and parents. They have always helped me when I was in trouble. Thank you. I feel very happy by receiving so much love and appreciation from you all. Receiving so much love and appreciation from you is the biggest moment of my life. I also feel so much gratitude to all the teachers and my parents for their for their guidance and hard work to support me. So I feel really happy and grateful to be here right now. This school has been a huge part of my life. I have grown up here and acquired so much and made some of my best memories. I'm really grateful to my parents and all of my teachers who are here to give me constant support and guidance. And yeah. Thank you, sister, for giving me this opportunity. First of all, I thank God for blessing me and guiding me in my studies. I came from a village where there were only 6 or 7 students in my class. I never imagined that I would get the chance to study in such a big and beautiful school. My heartfelt thanks to our school administrator for giving me this golden opportunity to learn here with kind, qualified, and understanding teachers who have always encouraged me. I also thank my parents and guardians for their love and sacrifices. This success means a lot to me. It is a dream come true. Thank you everyone from the bottom of my heart. Thank you, sister, for giving me this opportunity. I wanted to thank all of the teachers, my parents, and the principal of this school. I feel very happy by getting the opportunity to study in a big school like this. I am very happy to receive the love, respect, and honor from all of the students and teachers of the school. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. After receiving so much love and appreciation, I'm feeling very happy. And thank you to all the teachers who have supported me. Thank you. You know, guys, it was so wonderful to hear that all of your words and all. You guys really deserve this love and appreciation because it is the result of all your hard work and sacrifices. So, thank you so much. Now, would you like to give some advices to your juniors? So, first of all, I would like to say that everyone have their own pace of studying, and you should never compare yourself to others or their progress. And yes, most importantly, take care of your health and sleep because it helps you to perform better. Because no matter how much you study, if your brain is tired, it won't work. So, yes, a happy and a healthy mind works the best. For the advice that I would give to the juniors is that we should always believe in yourself, and no matter how much you experience failures in your life, you should always try. You should always try again, and you should always remember that we should follow discipline, cleanliness, and time management in our life, so that we can do our work systematically and accordingly. Thank you. Thank you so much. Indeed, that is a really good advice. We will try our best to follow your advices. So, can you please share us your study tips?
or ideas of studies. For example, what do you think? How many hours should we study? Should we go for understanding or should we just memorize them? According to me, you should not only remember the things but also understand the concept very well, so that if the question comes not from the books, you can answer it very well. And it's not necessary for you to study the whole day. It is enough for you to study for about 3 to 3.5 hours in a day, but it should be with full consistency and with full dedication. Thank you. For these study tips, I would like to say that when you sit to study, you should first make a study schedule or timetable so that you can study it accordingly. And also, it is very important to remember that we should always understand the concepts and the topics without only memorizing them. First we should break the topics into smaller concepts so we can understand it better and more properly. You should not only memorize the things but understand the things. If you can answer the questions that are related to that question, and you should make a timetable to study, like in a week you should study on Monday, Tuesday, Wednesday, and leave a day and then study the rest of the week. Thank you. Thank you so much. Your study tips sounds very effective and we will really use them in our upcoming days as well. So, will you like to say something about our school and the teachers? I would like to say something about the teachers and the school. In our Divine Word School, the teachers are very experienced and well treated, and they treat the children very well, and they clarify the doubts of every student properly and understandingly. And and in the school, various rules are followed, like discipline, cleanliness, and also punctuality. Thank you. In Divine Word School, the teachers are very polite and respect the opinions of the students. They also clarify the doubts of the students without any trouble and also make them understand the concept very well. About the school, I would like to say that the administration is very good and they not only focuses on studies but also focuses on other co-curricular activities. Thank you. Thank you so much for your kind words. And once again, congratulations all of you. And I wish all of you that your life will be filled with colors of success. Do not give up. Keep going. And of course, dream big. I know all of you can achieve it. So remember that all of us, including your parents, families, friends, this school, and the teachers will be always there for you and always root for you guys. Thank you so much. नमस्ते अंकल आंटी। मेरा नाम साजिदा रहमान है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चों ने पूरी स्टेट बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है। तो बच्चे के जो सारी पूरी साल का जो मेहनत और लगन से पढ़ाई किया है वो सक्सेस हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वो पल तो ज़रूर यादगार रहा होगा। तो जब आपके हिसाब से बच्चों को किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सफलता पा सकें? बच्चों को किताब के साथ साथ बाहर की दुनिया भी का ज्ञान भी होना ज़रूरी है और अपना हेल्थ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। साथ ही नींद पूरी लेना चाहिए। आउट नॉलेज ज़रूरी है और जो भी डाउट हो टीचर के पास जाना है, डाउट क्लियर करना है, अपना में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। थैंक यू। Thank you.
मैं सारे पेरेंट्स की तरफ से स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आज बच्चों के साथ साथ हमें भी बहुत ऑनर सम्मान मिला आपके स्कूल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो स्टडी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने बुमिन को पढ़ाया है, मैंने हमेशा ख्याल रखा है कि वो एटलीस्ट ये 2 घंटा सुबह शाम ये करे। ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं देती हूँ पढ़ाते वक्त, ताकि वो रेस्ट करे। बच्चे ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं एक समय तक, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती हूँ। उन्हें रेस्ट करने का मौका देती हूँ, बीच में मैं उसके साथ गेम खेलती हूँ। इस तरह से करके रिवीजन मस्त होता है। पढ़ने के बाद भी रिवीजन करना ज़रूरी है, वरना छूट जाते हैं, भूल जाते हैं। और अच्छा खाना, जितना सकेगा उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना दे, उन्हें मौका दे समझने का, कॉन्सेप्ट को समझे और अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लिखे। तो जैसे भी क्वेश्चन आए वो अटेम्प्ट करते हैं, लिखते हैं अपने अगर वो समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो वो मेमोराइज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट किए थे और फिर प्रीवियस ईयर्स के उनको दिया और सॉल्यूशन करने दिया, तो इस तरह से उनका प्रैक्टिस भी होते रहा। तो इस वजह से शायद ये आज दिन मुझे देखने मिला। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे ने भी मतलब टॉप किया है, उसके लिए मुझे खुशी है। साथ में सारे बच्चे ने जिसने टॉप किया है, और जो नहीं भी कर पाए हैं उनको भी दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। वो भी शायद कभी ज़िंदगी में अगर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कभी ना कभी तो सफलता प्राप्त करेंगे वो भी। लेकिन मतलब फादर ने इनवाइट करके हम लोगों को स्पेशली यहाँ में बुलाया है, उसके लिए तो बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी फादर को। लेकिन मतलब मेरे इसके पापा नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन में उनका ड्यूटी है, इसीलिए इस प्रोग्राम में वो नहीं आ पाए हैं। उसके लिए दुख भी है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो अटेंड करी हूँ कोशिश करके। इसलिए मतलब बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना चाहिए। प्लस मतलब वो किताब के लेसन के साथ साथ बाहर के भी कुछ कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके अच्छी से ध्यान देना चाहिए वो सब में। और मतलब सिर्फ किताब को पढ़ने से नहीं होता है, मतलब उसका अंदर का डाउट्स को समझे, टीचर लोग से डिस्कस करे, इसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से लिखना है। तो टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ये स्कूल मुझे पहले से बहुत पसंद है, यहाँ के टीचर सारे भी बहुत अच्छे हैं। और बच्चे भी अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो टीचर से पूछते हैं, तो वो अच्छी तरह से नोट्स भी लिखाते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। और वही कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद बेटी। यहाँ का जो डिवाइन बोर्ड के सारे परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आज हम सभी को यहाँ पर इस तरह से मिलने का मौका भी मिला है। और यहाँ पर बहुत हमको गर्व भी फील हुआ। जैसे कि बेटी ने पूछा है कि जैसे ही आपका बेटी यहाँ पर मैंने जो सक्सेस हुआ है उसके ऊपर आप कैसे फील हुआ, तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही गर्व फील हुआ कि मेरा बेटी जो है यहाँ पर जो स्टेट में टॉप आया, सेकेंड टॉप आया। तो सभी बेटी को भी, बेटा बेटी जितने भी छात्रा छात्री है यहाँ पर स्टूडेंट्स है, सभी को मैं यही मतलब कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये माँ पिताजी को सबसे खुशी जो है, खुशियाँ कहाँ पर मिलता है, जब उसका बेटा बेटी पढ़ाई में अच्छे हो, कुछ अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिखाए, तब सबसे बड़ा गिफ्ट अपना बेटा बेटी का बड़ा गिफ्ट वही है। अपना मतलब पिताजी को, माँ पिताजी को, पेरेंट्स को हम क्या गिफ्ट दूँ, इस तरह का सोचने का ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि माँ पिताजी को तोहफा, बड़ा तोहफा यही है कि मतलब आप स्कूल में टॉप करें। और सिर्फ स्कूल में नहीं, हर फील्ड में मेरा अनुरोध है, हर फील्ड में कोशिश करना चाहिए। कांस्टेंट मतलब मीन्स बोलता है ना, एक बार सफलता जो है उससे सीमित नहीं होना चाहिए। मीन्स वन टाइम सक्सेस इज़ नॉट एनफ ना। तो आप हर समय कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंसी रख के अगर ये सफलता रहेंगे, तभी आपका मतलब फ्यूचर जो है और ब्राइट होगा। तो ज़्यादा बोलने के लिए तो बहुत है, पर समय कम होने के नाते मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है आपकी ये बातें बाकी बच्चों के लिए बहुत मददगार होंगी।
क्या आप हमारे विद्यालय और यहाँ के शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द टाउन है। मुझे बहुत अच्छा, मैंने मतलब बहुत सारे स्कूल्स मैंने देखे यहाँ जब मैं ट्रांसफ़र आई यहाँ पे, तो लेकिन मुझे ये स्कूल के बारे में बहुत अच्छा पॉजिटिव सुनने मिला। तो एडमिशन होने के बाद बच्चों के ऊपर मैंने देखा तो उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। टीचर्स बहुत गाइड करते हैं, एनकरेज करते हैं, हर बात को ये सुनते हैं स्टूडेंट्स के भी, और उनके अगर उनसे कुछ ये हो जाता है तो बच्चों के लिए कुछ बताना होता है तो हमें बताते हैं, समझाते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के समय भी बहुत सारे टीचर्स ने बताया कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसके रूटीन होना चाहिए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ये स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ने यहीं से पढ़ाई की है। सबसे बड़ी वाली अभी तो यहाँ से क्लास 10 पास होके अभी 12th में है, बाहर में है, लेकिन दोनों बच्चे यही है और मैं इस स्कूल से फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। वही मैम ने जैसे बताया, मतलब ये स्कूल तो बहुत अच्छा है, वो तो सच बात है। क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे, यहाँ में नहीं पढ़ते थे, उस समय से मतलब हम भी सोचती थी कि मेरे बच्चे बड़े होने से मैं यहीं से पढ़ाऊँगी, इसीलिए मैंने भी दोनों बच्चों को यहीं से पढ़ा है। मेरी बेटी भी क्लास KG 1 से लेके पूरा क्लास 10 तक यहीं से पढ़ कर गई है। लेकिन अभी उसको एक बात का अफसोस होता है कि उसका पढ़ने का समय में 11 नहीं बना यहाँ में, क्योंकि वो भी साइंस से क्लास 12 पास हो गई है। तो मतलब उसको भी कभी कभी अफसोस होता है, ये स्कूल में 11-12 होने से हम यहीं से पढ़ के निकलना था बोल के। तो होगा उसका शायद नसीब में नहीं था, होगा 11-12 बनने का, अभी बना है फ़िलहाल। तो ये बच्चे भी KG 1 से पढ़ रहे हैं, अभी क्लास 9 में आप पहुँच गए हैं, ये इधर ही पढ़ रहे हैं। लेकिन टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, उनका गाइड करना, पढ़ाना, बच्चे को हर चीज़ में, मतलब पढ़ाई का साथ साथ और भी जितना कुछ फंक्शन होता है सब में अच्छा से सपोर्ट करते हैं। यहाँ के फादर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, जो भी है सब कुछ अच्छी है, अच्छी तरह से सब कुछ गाइडेंस होता है। इसीलिए मुझे ये स्कूल भी बहुत पसंद है और यहाँ के टीचर भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ का डिवाइन वार्ड स्कूल सबसे अच्छा है, इसीलिए मेरा छोटा बेटा भी इधर ही पढ़ रहा है क्लास 5 में, और ये तो नर्सरी से पढ़ रहा था, अभी क्लास 9 में है। यहाँ का प्रिंसिपल, फादर्स, सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एनी डाउट्स कुछ भी हो तो उसको अच्छी तरह से समझा देता है, एक्सप्लेन कर देते हैं। या कुछ बच्चे कुछ करते हैं तो हमसे भी आके डिस्कस करते हैं, तो हम लोग भी कभी डिस्कस करते हैं फादर को या टीचर्स को, तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बाकी यहाँ का डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन बहुत ही अच्छे हैं, हमें तो बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा छोटा बच्चा भी इधर ही पढ़ रहा है। तो उसके लिए थैंक यू। फिर से धन्यवाद। ये स्कूल के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा स्कूल है, इसीलिए मैं भी जैसे हमारा पेरेंट्स दोस्त जो है बोला है अपना बेटा बेटी को यहीं पर रखा है, मेरा भी तीनों का तीनों यहीं पर है। तो बहुत अच्छा स्कूल मानने के लिए वजह यही है कि मतलब सब अनुशासन या डिसिप्लिन वगैरह यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं। आज के जो प्रोग्राम यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था, इस पर भी बहुत ही सिस्टमेटिक से आयोजित किया गया है। तो ये स्कूल बहुत ही मतलब अच्छा स्कूल है। तो इसीलिए यहाँ मेरा बेटी जोनाम बोरंग क्लास 6 में JNB में भी उनको सिलेक्शन हुआ था, फिर भी इसका माँ और हम जो है नहीं, ये स्कूल को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, तो इसीलिए मतलब वो JNB में भी इसको नहीं भेजा, यहाँ पर कंटिन्यूअली करने दिया है। तो मेरा हिसाब से तो जितना भी देखा गया यहाँ स्कूल जो है, पहले भी बोला है, ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चलता है। फादर जितना मतलब यहाँ पर टीचिंग स्टाफ है सब कोऑपरेशन है, बहुत मतलब अच्छी तरह से सिखाते हैं बच्चों को। और खासकर हमारा ये फादर सिल्वा जो है बहुत ही मददगार, हमने मतलब उनको देखा है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, जब बेटी को थोड़ा ये इस बार का जो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ था ऑफिस में, DDC ऑफिस में, उसमें भी मेरा साथ दिया है पेरेंट्स, हम लोग जाके रिक्वेस्ट किया है, उसमें भी फादर सिल्वा जो है बहुत ही साथ दिया, उसके लिए मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा।
कि बहुत ही अच्छी मतलब ये रीति से हम लोग को साथ दिया है। और यही मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले साल को भी, आने वाले दिन को भी इसी तरह से ही ये डिवाइन स्कूल जो है चलते रहे और ये स्टेट का नाम को रोशन करे। और लास्टली यही मैं बोलना चाहूँगा, इज़ द वेस्ट, डिवाइन इज़ द बेस्ट। थैंक यू। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है आपकी ये बातें विद्यालय प्रशासन ज़रूर ध्यान में रखेगा। आपका समय देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस छोटे से इंटरव्यू का समापन करते हैं। धन्यवाद और एक बार फिर से बधाई आपके बच्चों की इतनी शानदार सफलता के लिए।